Print will be visiting Delhi's 3 infamous landfill sites that has been overflowing for several years. Recently, MCT has assured that these landfill sites will be flattened within the deadlines, which is December 2023 for Bhalaswa and Okhla and March 2024 for Ghazipur. The work has started on a war footing with a tender awarded to 3 different companies in order to address the garbage issues of these 3 landfill sites, and the work has started. 30 lakh metric ton of waste is supposed to be processed, and the companies have started the work within November month, and people who are handling this process have assured us that they will be able to finish the work within the deadline. You can see the garbage mountains, you can see the kind of dust, the kind of pollution that they have been sort of creating all around for several years, but now MCD has full faith that this will be completely eradicated, with also the waste of energy plants coming in and with these tendering process to trommel this waste away. On 3rd November 2022, the municipal body awarded tenders to 3 companies to process 30 lakh metric ton of legacy waste at each of the 3 landfill sites. The contract will be renewed for additional 15 lakh metric ton as and when the previous target has been met. The tender was awarded to Greentech for Okhla site, Alpha Therm Limited for Bhalaswa and Sudhakara Infratech for Ghazipur. Greentech's Ramakant Burman explains what the process entails. घर से आप सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करो और कलेक्ट करके फिर आप उसको प्रोसेसिंग करो। आरडीएफ को सीमेंट प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में भेजो जहाँ पर कि उसका फ्यूल के रूप में यूटिलाइजेशन हो सके। सीएनडी वेस्ट कोई है तो सीएनडी प्लांट में उसको प्रोसेस करो और उसको फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करो। और जो फ्रेश वेस्ट का कचरा है जो डेली का आ रहा है उसको जो है बायोकल्चर वगैरह यूज करके उसका फर्टिलाइज़र बनाओ या बायोगैस बनाओ और उसको यूज़ करो। तो ये तो फ्रेश वेस्ट है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं इस खत्ते पे वो केवल लिगेसी वेस्ट है जो 40-50 साल से पड़ा हुआ यहाँ पे उसको प्रोसेस करने की बात है। Approximately 203 lakh metric tons of legacy garbage dumped in the 3 landfills as on September 2022. About 33.5% has been processed so far by the companies. It is done through the process of trommeling, that is sieving the waste through trommel machines and segregating it into 3 categories: inert waste, construction and demolition, and segregated combustible fraction. हम भी उसको पहले अपने स्क्रीनिंग मशीन में चोकर को अलग करते हैं। सपोज करो तो चोकर हो गया वो आपका वो आरडीएफ हो गया, और जो नीचे से जो निकल रहा है आटा है उसको हम लोग इनर्ट बोल रहे हैं। इस डंपर में लोड होकर के इनर्ट जा रहा है। और जितना नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं वो चाहे नोएडा में हो, चाहे गुरुग्राम में हो, चाहे जो भी दिल्ली के आसपास हैं, वो सारे प्रोजेक्ट में ये मटेरियल जो है यूज हो रहा है। बिकॉज दिस मटेरियल विच इज़ इनर्ट दैट इज़ वेरी गुड फॉर लैंडस्केपिंग एंड प्लांटेशन ऑल्सो, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर का कंटेंट भी है, कंपोस्ट का भी कंटेंट भी है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। Inert waste is not chemically nor biologically reactive and does not decompose or does so very slowly. C&D waste includes concrete, building debris and rubble, while the former is given to Central Public Works Department official and municipal engineers. The construction and demolition waste is bought by construction companies or private players. जो C&D है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जिसको हम सेग्रीगेट करके अलग कर रहे हैं, तो उसको हम फिर फर्दर प्रोसेस करके उसको हम ईंटा जो है, जो ब्रिक्स होते हैं, वो क्या होता है उसकी डेंसिटी कम होती है, पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो पत्थर को फिर प्रोसेस करके पत्थर को अलग करते हैं, ईंटा को अलग करते हैं, अलग करके फिर उसको प्रोसेसिंग करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भेज रहे हैं। Segregated combustible fraction is reused, recycled and turned into fuel called refuse derived fuel and is also colloquially known by that name. It is used by cement industries or thermal industries. बाकी बच गया आरडीएफ, जो मैंने आपको बता दिया कि प्लास्टिक है, मल्टी लेयर प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, चप्पल है, जूता है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबकी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू है। मैक्सिमम इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है और मल्टी लेयर प्लास्टिक है। जैसे कुरकुरे के पैकेट है, चॉकलेट का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, आइसक्रीम का पैकेट है, इसकी कोई रिसाइकलेबिलिटी नहीं है। ये कहाँ जाए? तो यही गंदगी फैलाती है, इन्हीं कचरों से गंदगी फैलती है। और यह जो है बहुत हॉट केक है। दिस इज अ हॉट केक फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, फॉर सीमेंट प्लांट्स एंड फॉर इंडस्ट्रीज विच हैव कन्वर्टेड देयर बॉयलर टू यूज अल्टरनेटिव फ्यूल। सो डिमांड फॉर दिस मटेरियल्स इज वेरी हाई टुडे। Not only because it is environment friendly, this is also economical for the industry which is using it. तो ये है, ये गवर्नमेंट का देखिए कितना पॉजिटिव अप्रोच है कि भैया आग लगना है तो पोल्यूशन करके क्यों हो, प्रदूषण करके क्यों हो? आग लगना है तो खत्ते पे क्यों? आग लगना है तो बॉयलर के नीचे आग लगा दो, सीमेंट प्लांट पे वहाँ पे हीट जनरेट कर दो,
बॉयलर क्या है, वो सिंपल सी केटली जैसा वो मूवमेंट होता है, पानी स्टीम बनता है, स्टीम बन करके फिर आपका केटली का जैसे मूवमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी और वो टरबाइन से मूव करके फिर एनर्जी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी वही है। सिंपल सी बात, बॉयलर में जला करके स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करके टरबाइन को मूव करा करके काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। MCD officials have said that they are trying to get the Okhla landfill cleared before the G20 event in September, as it is expected to fall on the South Delhi route of foreign dignitaries that will be visiting. Experts believe the initial deadlines were too ambitious, while stakeholders in the project are confident that they will be met. जो डेडलाइन मुझे एमसीडी ऑफिशियल्स बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने दिसंबर 2023 की भलसवा और ओखला के लिए रखी है और गाजीपुर के लिए मार्च 2024 की रखी है। प्लस क्योंकि G20 का इवेंट है सितंबर में, वो कह रहे थे कि हम पुश करेंगे कि सितंबर कब है 9 to 11 9 10 11 ऐसे डेट्स हैं। हाँ, क्या पुश करेंगे? वो कह रहे थे कि हम टेंडर जिनको अवार्ड किया गया है उनको पुश करेंगे कि काम थोड़ा और जल्दी हो, अगर पॉसिबल हो सके तो G20 इवेंट से पहले हो जाए। सितंबर के पहले तो बहुत खाली कर दूंगा मैं। कर दी। और क्या, आप देखो कि अभी तक मैं 3.5 लाख टन प्रोसेस कर चुका हूँ। अब प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल हो चुका है, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि ओखला का जो मॉडल हमने सेट किया, स्टैंडर्ड सेट किया है, एमसीडी ने जो सेट किया है, ये आने वाले समय में भारतवर्ष के लिए मॉडल होगा। ओखला मॉडल विल बी द मॉडल। इट इज़ अ वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट इन मोस्ट साइंटिफिक मैनर एंड सच अ ह्यूज स्केल। तो ये कितनी लोग हैं आपने जो हायर कर रखे हैं एक दिन में जो आके काम करते हैं? हमारे यहाँ काम करते हैं 500 पीपल वर्क हियर। हमारे यहाँ अभी 100 गाड़ियाँ रेगुलर चल रही हैं। डंपर हाईवा जो है आपके 6 चक्के की गाड़ियाँ और 10 चक्के की जो गाड़ियाँ हैं हाईवाज हैं। Clearing the landfills also means making sure that the maximum amount of fresh waste is processed so that it doesn't add to the garbage mountains. This is where waste to energy plants come in that use waste as a fuel for generating power. There are currently 4 operational WTEs, but their operational capacity still lags behind the amount of garbage generated, leading to the excess being dumped in landfills. फ्रेश गार्बेज का डंपिंग का क्या है? क्योंकि क्या होता है कि लेगेसी वेस्ट पूरा तो है ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर यहाँ पे फ्रेश वेस्ट डंपिंग भी हो तो वो चीज़ कभी डंपिंग हो नहीं रही है। फ्रेश वेस्टिंग ओखला में आ नहीं रही है। ओखला में जो फ्रेश वेस्ट आ रहा था वो बगल में आपका जिंदल का प्लांट है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, तो वहाँ जा रहा है। वहाँ पर उसकी वो फ्रेश वेस्ट लेकर के उसको प्रोसेस कर रहे हैं, बिजली जनरेट कर रहे हैं। आप भी कुछ ओखला की जो 2 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, वहाँ पे भी आप कुछ भेजते हैं RDF जैसे? आप फ्रेश वेस्ट वहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ फ्रेश वेस्ट चूँकि जा रहा है तो उनके कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जा रही है। इसीलिए हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास RDF कंज्यूम करने के लिए सीमेंट प्लांट बहुत सारे हैं। Though officials and others have denied that fresh garbage dumping has stopped in Okhla and will be stopped soon in Gazipur and Bhalaswa, however, the figures of how much fresh garbage is being currently processed by the WTAs, which are running at a low capacity, show that it will not be possible for fresh garbage dumping to be stopped in any of the landfills anytime soon. That is why experts believe despite all the efforts, the exercise is massive and will take many years. This is Sukriti Vats for The Print.